Hello everyone, welcome to Inkling's English classes. In this video, we are going to discuss Walt Whitman's poem I Sit and Look Out. वॉल्ट विटमैन अमेरिका के एक मशहूर कवि हुए हैं। उनके द्वारा लिखी गई कविता आई सिट एंड लुक आउट संसार का निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करती है। कवि ने इस छोटी सी कविता के माध्यम से मानव के बहुत से कष्टों का वर्णन किया है। यह कविता हमारे सामने बहुत से दुर्भाग्य प्रस्तुत करती है and in a way this poem provides a kind of catharsis. So if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. So now let's have a look at the poem without wasting our time. I sit and look out upon all the sorrows of the world and upon all the oppression and shame. I hear secret convulsive sobs from young men at anguish with themselves, remorseful after deeds done. I see in low life the mother misused by her children, dying neglected, gaunt, desperate. I see the wife misused by her husband. I see the treacherous seducer of young women. I mark the ranklings of jealousy and unrequited love attempted to be hid. I see these sights on the earth. I see the workings of battle, pestilence, tyranny. I see martyrs and prisoners. I observe a famine at sea. I observe the sailors casting lots, who shall be killed to preserve the lives of the rest. I observe the slights and degradations cast by arrogant persons upon laborers, the poor and the Negroes, and the like. All these, all the meanness and agony without end, I sitting look out upon, see, hear and am silent. आइए जानते हैं कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। I sit and look out upon all the sorrows of the world and upon all the oppression and shame. कवि कहता है कि मैं अपने घर की चार दीवारी के बीच में बैठता हूँ और अपने चारों ओर संसार का सर्वेक्षण करता हूँ। फिर कवि कहता है कि पूरा संसार दुखों की पकड़ में जकड़ा हुआ है। कुछ लोग बेशर्मी से दूसरों को दबा रहे हैं। I hear secret convulsive sobs from young men at anguish with themselves, remorseful after deeds done. कवि कहता है कि मैं कुछ नौजवान लोगों को रोते हुए सुनता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिसके बाद वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, इसीलिए वे छिपकर पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। आगे कवि कहता है I see in low life the mother misused by her children, dying neglected, gaunt, desperate. कवि कहता है कि मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जिनमें जो कुछ बच्चे हैं वे अपनी मदर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और वो जो माताएं हैं, वो जो मदर्स हैं, इसी वजह से वो लापरवाही के कारण मर रही हैं। और वो आगे कहता है कि वो माताएं, वो मदर्स केवल हड्डियों का एक ढांचा है, वो केवल देखने को ही जीवित हैं, लेकिन वे पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही हैं। I see the wife misused by her husband. I see the treacherous seducer of young women. कवि कहता है कि कुछ औरतें अपने पतियों के हाथों कष्ट उठाती हैं और कवि कहता है कि मैं कुछ ऐसे प्रेमियों को, कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनको देखता हूँ जो कि नौजवान औरतों के साथ धोखा करते हैं।
I mark the ranklings of jealousy and unrequited love attempted to be hid. I see these sights on the earth. कवि कहता है कि मैं देखता हूँ कि कुछ नौजवान लोगों में एक तरफा ईर्ष्या फैली हुई है, क्योंकि उनका जो प्यार है वो उन्हें वापस नहीं मिला। लोग इन सभी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भावनाएं आसानी से दिखाई दे जाती हैं। आगे कवि कहता है, I see the workings of battle, pestilence, tyranny, I see martyrs and prisoners. कवि कहता है कि मैं देखता हूँ कि पूरा समाज युद्ध, महामारी और जुल्म से पीड़ित है। इसके अलावा मैं शहीदों को, जो लड़ाइयों में शहीद हो रहे हैं और जो युद्ध में बंदी बन जाते हैं, उन्हें भी देख सकता हूँ। I observe a famine at sea. I observe the sailors casting lots who shall be killed to preserve the lives of others. फिर कवि कहता है कि समुद्र में नाविकों के बीच अकाल पड़ जाता है, और जैसे ही अकाल पड़ता है तब एक एक करके कुछ नाविकों को समुद्र में फेंकने की ज़रूरत होती है ताकि दूसरे ज़िंदा रह सकें, और ऐसा लॉटरी निकाल के किया जाता है। I observe the slights and degradations cast by arrogant persons upon laborers, the poor and the negroes and the like. कवि कहता है कि मैं गरीब लोगों का, नीग्रोज़ का, वर्कर्स का और ऐसे ही अनेकों लोगों का अपमान घमंडी लोगों के हाथों होते हुए देखता हूँ। All these, all the meanness and agony without end, I sitting look out upon, see, hear and am silent. कवि कहता है कि मैं असीमित नीचता, व्यथा और पीड़ा को देखता हूँ, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी मैं उसे देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ, खामोश रहता हूँ। Now let's have a look at some difficult words that we have come across the poem. Our first word is convulsive, which means violently agitated. Remorseful, full of repentance. Desperate, without any hope in life. Treacherous, deceptive. Seducer, a man who tempts a woman. Unrequited, unrewarded. Pestilence, any deadly disease. Casting lots, to draw lots यानी कि लॉटरी निकालना. Arrogant, proud and conceited. Negroes, black people of America. Agony, mental pain. Now it's time to discuss the summary of the poem. कवि चारों ओर संसार का सर्वेक्षण करता है। वह इसे दुखों और कष्टों से भरपूर पाता है। कुछ लोग बेशर्मी से दूसरों को दबा रहे हैं और कुछ नौजवान युवा लोग गलतियां करते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। वे पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। गरीब लोगों में कुछ माताएं ऐसी हैं जिन्हें उनके बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी लापरवाही की वजह से वे निराश होकर मर जाती हैं। कुछ औरतों को उनके पतियों के द्वारा परेशान किया जाता है, दुखी किया जाता है। युवा प्रेमियों के बीच ईर्ष्या, संताप, अपुरस्कृत प्रेम और फुसलाहट पूरी तरह से फैले हुए हैं। पूरा समाज युद्ध, महामारी और जुल्म से पीड़ित है। नाविक समुद्र पर भोजन की कमी के कारण मर जाते हैं। कवि तिरस्कारों और अपमानों को देखता है और वह यह भी देखता है कि कैसे कुछ घमंडी लोग गरीबों को प्रताड़ित करते हैं। वह चारों तरफ असीमित कमीनगी और व्यथा को देखता है। वह यह सब देखता है, यह सब सुनता है, लेकिन वह खामोश रहता है क्योंकि वह कुछ करने के योग्य नहीं है।
So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.